Hello viewers, today we discuss Microsoft Windows from first version 2000 servers to 2020. तो dear student, इसमें हम तमाम जो विंडोज़ सर्वर्स के फ्लेवर्स हैं उसको फर्दर डिस्कस करेंगे और उस विंडोज़ के हर वर्जन में जो नए फीचर्स आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम जनरल रिव्यू करेंगे और उसके जो बेस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2000 सर्वर है जो सबसे पहले लॉन्च की गई थी। इससे पहले विंडो एंटी सर्वर भी था जो नेटवर्क बेस आया था, लेकिन विंडोज़ 2000 फ्लेवर्स फर्स्ट फ्लेवर है जो अभी विंडोज़ सर्वर्स की जनरेशन्स चल रही हैं। तो हम इन तमाम वर्जन्स विंडो 2000, विंडो 2003, विंडो 2008, विंडो 2012 और विंडो 2016, 2019 एंड विंडो 2020 का हम जिक्र करेंगे और उस पे हम डिस्कशन करेंगे। इनके बारे में जो भी आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में या हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको इसकी डिटेल्स साथ साथ बतवा देंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगी वो इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में होगी कि विंडोज़ 2000 सर्वर की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और उसके फीचर्स को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो हम उसमें स्टेप बाय स्टेप तमाम वर्जन की इंस्टॉलेशन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो डिस्कशन में है वो ये है कि बेसिकली विंडोज़ 2000 डिज़ाइन गोल्स क्या था। इंटीग्रेट द बेस्ट फीचर ऑफ विंडोज़ 98 एंड एंटी। विंडोज़ 2000 से पहले विंडो 98 क्लाइंट बेस थी और वर्क स्टेशन के लिए यूज़ होती थी और एक जो छोटा सा नेटवर्क है उसमें वर्क ग्रुप बनाने के लिए विंडो 98 को हम यूज़ कर लेते थे। विंडो 98 में चूँकि सर्वर नहीं था और ये क्लाइंट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो 98 विंडो में मोर देन वन कंप्यूटर्स को हम कम्युनिकेशन के लिए वर्क ग्रुप में ऐड करके एक नेटवर्क में करते थे और बाकी स्टैंड अलोन तो हम बहुत से फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था फैट 32 पे, उस पे हम इसकी इंस्टॉलेशन भी करके आपको दिखा देंगे। और एंटी जो है वो 98 के वर्स्ट एंड में जब इसकी लॉन्च हुआ तो ये बेसिकली नेटवर्क के लिए यूज़ किया गया था। फर्स्ट टाइम इसका जो पर्पस था वो
نیٹورک کی انٹیگریشن کے لیے یوز کیا گیا تھا. اس میں جو سیکنڈ لائن ہے پرووائڈز وائڈ رینج آف سپورٹ فار ہارڈ ویئر، کہ ہارڈ ویئر کے لیے زیادہ سے زیادہ وائڈ رینج پرووائڈ کی جائے. ونڈوز 2000 کا جو مین فیچرز میں تھا کہ جتنے بھی ہارڈ ویئرس ہیں ان کی سپورٹ کر دیں. کچھ ہارڈ ویئر ونڈو 98 کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. جیسے جیسے نئی جنریشن آتی گئیں، پیریڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جاتے گئے تو ہارڈ ویئرس میں چینج آتی گئی، تو پھر اس کا ونڈو 2000 کو ڈیزائن کیا گیا مائکروسافٹ کی طرف سے. میک دا آپریٹنگ سسٹم ایزیئر ٹو یوز، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یوزر فرینڈلی بنایا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ یوز کریں، نیٹ ورک پہ آ جائیں، کمیونیکیشنس کریں، کمپیوٹرز کو یوز کریں اور تمام کمپیوٹر فرینڈلی انوائرمنٹ ہو. شروع میں تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جن کو ماؤس تک چلانا نہیں آتا تھا. یہ 98-97 میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ ماؤس کو پکڑ کے وہ ڈریگ کر رہے ہوتے تھے، اور ایون کئی دفعہ ماؤس جو ہے وہ نیچے گر جاتا تھا. تو یوزر یہ کہتے تھے سر یہ ماؤس تو اب غائب ہو گیا ہے. تو ماؤس کے جو آئیکن ہے وہ تو غائب ہی ہونا چاہتا. جب ماؤس نیچے گر گیا تو ماؤس آئیکن تو ڈسپلے میں نہیں آنا تھا. پرووائڈ ڈاؤن ٹو فائل لیول سیکیورٹی، کہ اس کا ڈیزائن کا ایک گول یہ بھی تھا کہ فائل لیول پہ، فولڈر لیول پہ میکسیمم سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. پاور مینجمنٹ انہینسمنٹ کی جائے، اس کا یہ بھی مقصد تھا. نیکسٹ، ونڈوز 2000 پروڈکٹس. ونڈوز 2000 جب لانچ ہوئی تو اس میں مختلف فلیورز پرووائڈ کیے گئے. اس پروڈکٹ کے اندر کمپلیٹ پیکج کے اندر ایک ونڈوز 2000 پروفیشنل تھا. یہ ونڈو 2000 پروفیشنل اسٹینڈ الاؤن کمپیوٹر کے لیے یا ورک اسٹیشن کے لیے یوز ہوتی تھی اور کلائنٹ بیسڈ آپریٹنگ سسٹم تھا. ونڈو 2000 سرور جو ہے وہ سرور بیسڈ یوز فار سپروائزری سرور، ایکٹیو ڈائریکٹری سرور یو کین سے، ایک لیڈر کے طور پہ، ایک گائیڈر کے طور پہ، ایک کہہ لیں کہ کنٹرولر کے طور پہ یہ آپریٹنگ سسٹم لانچ ہوا تھا. جب بھی کوئی چھوٹی یا بڑی 2000 میں نیٹ ورک بنایا جاتا تھا، یونیورسٹیز میں ہم نے دیکھا ونڈوز 2000 سرورز کنفیگر کیا جاتا تھا، ایکٹیو ڈائریکٹری کنفیگر کی جاتی تھی، اس میں یوزرز کریٹ ہوتے تھے اور پروفیشنل جو ورک اسٹیشن تھے ونڈو آپریٹنگ پروفیشنل انسٹال ہوتا تھا اور وہاں سے تمام یوزرز جو ہے سرورز کی اپلیکیشنز کو یوز کرتے تھے. ونڈوز 2000 ایڈوانس سرور، اس میں کچھ فیچر ایڈ ہو گئے تھے، اور ایک پروڈکٹ تھی ونڈوز 2000 ڈیٹا سینٹر سرور، یہ بھی ان کی پروڈکٹ تھی اور اس میں سلائٹ ڈفرینٹ فیچرز تھے.
मैं आपको ये भी आज बताता चलूँ नाज़रीन कि ये जो हमारा वीडियो लॉन्च हो रहा है ये थोड़ा सा रूटीन से मे बी लेंथी हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे हम अगर फर्दर ओवरव्यू भी दें तो ये शायद 45 मिनट्स 50 मिनट्स 1 आवर्स तक लेंथी हो सकता है। नॉर्मली हमारी वीडियोस 30 मिनट्स की होती हैं, ताकि आप लोग बोर भी ना हों और उसको जो है आप अच्छे तरीके से एक लेक्चर को समझ लें। और अगर एक दफ़ा आपको समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बार बार देखें। मकसद ये है कि आप अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें। जहां आपको फिर भी प्रॉब्लम आता है आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर हम आपको वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कहीं दे देंगे, कोई इशू नहीं है। विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल जो हमने एक प्रोडक्ट की बात की विंडो 2000 फ्लेवर्स के में, तो माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस ऑफ ऑल साइज, क्योंकि ये वर्क स्टेशन था और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, मिडिल ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके वर्क स्टेशन पे विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल इंस्टॉल होता रहा है। इट सपोर्ट्स अप टू 2 प्रोसेसर। उस वक्त नॉर्मली आते ही डुअल प्रोसेसर्स के पीसीस थे। ये कोड और कोर टू डू, उसके बाद ऑक्टा कोर, ये जितने अभी वर्क स्टेशंस चल रहे हैं और इनकी डिफरेंट जनरेशन्स, ये सारी की सारी जो है ये बाद में जो है वो आई हैं, उस वक्त ये नहीं थी। इसमें एक जो फीचर हाई परफॉर्मेंस एंड सिक्योर नेटवर्क क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। Windows 2000 servers ideal for small to medium size enterprise। ये जो Windows 2000 सर्वर्स ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्च हुआ था और आइडियली स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज के लिए ये यूज होता है। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें ये भी दूसरे यूनिक्स और दूसरे फ्लेवर्स होते हैं। विंडो फ्रेंडली के लिए विंडोज़ 2000 सर्वर्स बड़ा आइडियल तस्वर किया जाता था और हर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में, एजुकेशन सेंटर्स में, सॉफ्टवेयर सेंटर्स में ये विंडोज़ 2000 सर्वर्स जो है वो इंस्टॉल किया जाता था और उसी का नेटवर्क बनाया जाता था। फाइल प्रिंट एप्लीकेशन सर्वर्स एज वेल एज वेब सर्वर्स। विंडोज़ 2000 सर्वर के अंदर फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर का फीचर्स अवेलेबल थे, कॉन्फ़िगर होते थे और ये एप्लीकेबल थे। और ये फीचर्स जो हैं
वो कॉन्फ़िगर होते रहे हैं और हम आपको ये कॉन्फ़िगर करें। फ़ाइल सर्वर क्या होता है कि जहां आपकी तमाम फाइल्स डेटा आप कॉपी करते हैं और वहां से ही आप उठाते हैं। जैसे आपने वर्ड्स की फ़ाइल बनाई, एक्सेल की फ़ाइल बनाई, कोई प्रेजेंटेशन बनाई, कुछ और बनाया, तो वो सारी की सारी एक सर्वर्स के अंदर या इसी जो मेन एक्टिव डायरेक्टरी हमारा सर्वर है उसमें एक फ़ोल्डर बना के एज ए फाइल सर्वर हमने यूज़ किया। प्रिंट सर्वर अगर इसी लोकल सर्वर के साथ लगा हुआ है तो ये एज ए बेशक वक्त फाइल सर्वर भी है और आपका प्रिंट सर्वर भी है और एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी है। एप्लीकेशन सर्वर, कोई भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो उस वक्त विजुअल सी, विजुअल बेसिक, ये मोस्टली ऐसी एप्लीकेशंस थी जो सर्वर बेस यूज़ होती रही हैं। उसके बाद वेब सर्वर आप प्रॉक्सी सर्वर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वेब सर्वर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट के लिए शेयरिंग कर सकते थे। ये सपोर्ट अप टू 4 प्रोसेसर, ये हार्डवेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त सपोर्टेड था 4 प्रोसेसर के लिए और ऐसे सर्वर्स अवेलेबल थे उस वक्त के प्रोलैंड 385 80 कॉम्पैक्ट के सर्वर्स अवेलेबल थे, एचपी के भी अवेलेबल थे। एचपी उस वक्त एज ए कॉम्पैक्ट ही काम करता रहा है। बाद में ये एचपी और फिर एचपीई में कन्वर्ट हो गया। तो बाकी आईबीएम, एप्पल और बाकी हार्डवेयर भी अवेलेबल था। प्रोवाइड कंप्लीट सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, एडीएस, ये भी एक इसमें फीचर अवेलेबल था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2000 सर्वर्स में। विंडोज़ 2000 एडवांस सर्वर आइडियली फॉर लार्ज साइज एंटरप्राइज, ये जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका वॉल्यूम ऑफ डेटा बड़ा था, जिनके यूज़र्स बहुत ज़्यादा थे, 1000 में थे, तो उसके एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स के लिए एडवांस सर्वर्स की इंस्टॉलेशन की जाती थी और ये उस वक्त सपोर्ट अप टू 8 प्रोसेसर को सपोर्ट करता था, यानी 16 कोर तक सपोर्टेड था और ये क्लस्टरिंग के लिए भी यूज़ होता रहा। मीन के आप फेल ओवर सर्वर्स के तौर पे भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकते थे। इसमें ऑप्शन फैसिलिटी अवेलेबल थी कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर्स, फेल ओवर सर्वर्स दोनों पे एडवांस सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते थे। विंडोज़ 2000 एडवांस सर्वर डिलीवर इनहांस मैनेजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये मेन फीचर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबल होने के लिए कि उसके जो हार्डवेयर लगा हुआ है उसका जो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉलेशन हुई है या करने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो आपका मैनेजेबल हो, रिलायबल हो, अवेलेबिलिटी उसकी हो और स्केलेबिलिटी हो, कि आपको किसी भी स्टेज पे उसको अपग्रेड करना पड़े, उसमें एनहेंसमेंट करनी पड़े, तो वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ 2000 एडवांस सर्वर का था वो स्केलेबल था। अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी 24 आवर्स चल सकता था। इसमें ऐसे इंटीग्रेशंस हुई थी कि जिससे इस सर्वर को आप जो है कंटिन्यूसली किसी भी हार्डवेयर पे
जो है वो आप ऑपरेट कर सकते थे। रिलायबल था, इसमें मिनिमम बग्स अवेलेबल थे। माइक्रोसॉफ्ट का बेहतरीन एक सॉफ्टवेयर था जो उन्होंने लॉन्च किया और बेसिक फीचर्स के साथ और एडवांस फीचर के साथ लॉन्च किया और इजी एक्सेसिबल और मैनेजेबल भी रहा। और ये एक इनके विंडोज़ सर्वर्स के पायनियर ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम रहा। विंडोज़ 2000 डेटा सेंटर्स के क्या फीचर्स थे? हाई एंड वर्जन ऑफ विंडोज़ 2000 सर्वर डिज़ाइन फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइज। नंबर 2, सपोर्ट अप टू 32 प्रोसेसर, यानी 32 प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता था। ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज डेटा वेयर हाउस, जो बड़े बड़े डेटा वेयर हाउस थे उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती थी, इंस्टॉलेशन की जाती थी और आल्सो फॉर सपोर्टिंग क्लस्टरिंग के लिए भी इसको यूज़ करते थे। What is the difference between the Windows 2016 and Windows 2019? हमने अभी Windows 2000 की बात की, Windows 2003, Windows 2008, ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते फ्लेवर थे। इसमें कोई मेजर फीचर्स चेंज नहीं आया। जो Windows 2016 और Windows 2000 सर्वर 19 है, ये दोनों मिलते जुलते हैं और इस 2016 ही की इन्हेंसमेंट है 2019। इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जो 2016 में वर्जन के अंदर इन्हेंसमेंट की गई, जो फीचर दिए गए उसको मज़ीद इन्हेंस किया गया है 2019 में। वाइल द 2016 वर्जन was based on the use sorry for some interruption. While the 2016 version was based on use of shielded VMs, the 2019 version offers extra support to run Linux VM. In addition, the 2019 version is based on the protect, detect and respond approach to security. VM Connect offers additional support to troubleshoot common network issues. तो ये सिंपल सा इसमें लाइट सा है डिफरेंस कि VM जो कनेक्ट है वो एडिशनल 19 वर्जन में जो है वो प्रोटेक्ट, डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड टू अप्रोच द सिक्योरिटी और एडिशनल सपोर्ट करता है ट्रबल शूट कॉमन नेटवर्क्स में। विल बी a Windows 2000 servers 2020. Windows Server 2020 is the successor to Windows Server 2019. कि Windows 2019 की एक सक्सेस रिलीज है Windows 2020।
It was released on May 19, 2020. It's bundled with Windows 2020 and has Windows 10 फीचर्स। विंडोज़ 10 के अंदर जो फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर मर्ज हुए हैं। Some features are disabled by default and you can enable it using operating system Microsoft Store. It is available like in previous versions। प्रीवियस सर्विस के जितने भी वर्जन्स हैं उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, उसको आप इनेबल कर सकते हैं विंडोज़ 2020 में। तो ये जो विंडोज़ 2000 सर्वर 2020 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 19 है, विंडोज़ 2016 है, इन सारे सर्विस की जब हम लेक्चर्स डिटेल में जाएंगे तो उनके फीचर्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ आपको इस विंडोज़ 2000 के ओवरव्यू दे रहे हैं। बेसिक जो इसका कंसेप्ट था, नेटवर्क कंसेप्ट इसका क्या था? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS, software that enable computer users to share computer equipment, software and data, voice and video transmission। Network, a communication system that enable computer users to share computer equipment, software and data, voice and video transmission। बेसिक कंसेप्ट नेटवर्क का क्या है इसके अंदर। यहाँ इस वीडियो में इस स्लाइड में आपको ये बता रहे हैं कि ये स्टेट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका ये नेटवर्क से एक बना हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि ये एक एक्टिव डायरेक्टरी के साथ भी हो सकता है, वर्क ग्रुप का नेटवर्क भी हो सकता है, और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा नेटवर्क है। इसमें ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, और यहाँ से यहाँ तक जो हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं इसका वैन इन्वॉल्व है। तो ये सारे का सारा एक नेटवर्क है और इसमें बेसिकली विंडोज़ 2000 का जो बेसिक नेटवर्क कंसेप्ट था जिस पे ये डिज़ाइन किया गया था वो ये था कि नेटवर्किंग अक्रॉस द कंटिनेंट्स। ये बेसिक था कि तमाम वर्ल्ड को कंबाइन करना है एक नेटवर्क के अंदर। तो इस गोल के तहत इस विंडोज़ 2000 को लॉन्च किया गया था। बेसिक नेटवर्क कंसेप्ट क्लाइंट क्या है? एक कंप्यूटर दैट एक्सेसेस रिसोर्सेज ऑन अनदर कंप्यूटर वाया ए नेटवर्क आर ए डायरेक्ट कनेक्शन। हम जो इससे पहली स्लाइड में देखा कि ये जो यहाँ के सोर्सेज हैं वो यहाँ के सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ को यूज़। तो बेसिकली इस क्लाइंट का जो कंसेप्ट है वो यही है कि वो दूसरे के सोर्सेज को यूज़ कर सकता है थ्रू नेटवर्क्स। यहाँ बेसिक नेटवर्क कंसेप्ट में वर्क स्टेशन का क्या कंसेप्ट है कि एक कंप्यूटर that has its own CPU and may be used as the stand-alone computer for work processing, जैसे word processing, spreadsheet creation or other software applications. It also may be used to access other computers such as a mainframe computers or a file server, जो हमने पहले बात की फाइल सर्वर की,
print servers and others Active Directory servers as long as the necessary network hardware and software are installed. तो ये इसका वर्क स्टेशन का बेसिकली कंसेप्ट है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। इसमें एक जो नेटवर्क की बेसिक सी एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, पीयर टू पेयर नेटवर्क। ये क्या नेटवर्क है? बहुत पहले एक कंसेप्ट जब स्टार्ट में था तो ये पेयर टू पेयर नेटवर्क का कंसेप्ट था कि a नेटवर्क वेयर एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर्स network computers on an equal or peer link base without going through an intermediary such as a server or host। कि एक केबल के थ्रू दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर लिया जाता था। वो एक दूसरे के सोर्सेस को यूज़ करते थे, लेकिन वो अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के सोर्सेस, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस को यूज़ करते थे बगैर किसी होस्ट सर्वर के या बगैर किसी कह लें कि सर्वर्स या कंट्रोलर के। often used in very small organization such as 2 to 10 person office। कि अगर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑफिस है, तो उसमें अगर 1 2 3 4 5 कंप्यूटर्स को ज्वाइन करना है तो वो बगैर किसी सर्विस के ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पेयर टू पेयर नेटवर्क्स टिपोलॉजीज यूज़ करते हुए ये हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए एक छोटा सा नेटवर्क बना लेते थे। ये सिंपल पेयर टू पेयर नेटवर्क्स क्या है कि यहाँ अगर आप इस कंसेप्ट की तरफ आएँ तो ये एक वर्क स्टेशन है, ये एक वर्क स्टेशन है, ये एक वर्क स्टेशन है, ये वर्क स्टेशन है, और ये इन्होंने एक हब दे दिया है। पहले मैनेजेबल स्विच नहीं थे स्टार्ट में, इसी तरह के एक अनमैनेजेबल स्विच आते थे हब बेस, जिसे हब कहते थे। कि यहाँ से सोर्सेस जो है एक वर्क स्टेशन से जब रिक्वेस्ट आती थी तो यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट कर देता था तमाम हार्डवेयर और वर्क स्टेशन को। जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाती थी वो रिक्वेस्ट जो एक कंप्यूटर से आती थी, तो वो तमाम कंप्यूटर्स तक वो रिक्वेस्ट जाती थी। पेयर टू पेयर विदाउट सर्वर में ये होता है, क्योंकि यहाँ कंट्रोलर नहीं है, यहाँ कोई मैनेजेबल सर्वर नहीं है। तो इस कंसेप्ट के तहत होता क्या था कि एक रिक्वेस्ट तमाम सर्वर के पास वर्क स्टेशन के पास जाती थी, तो जिस वर्क स्टेशन की वो रिक्वेस्ट होती थी वो उसको ले लेता था, बाकी उसको रिफ्यूज़ कर देते थे। तो अगर जैसे यहाँ से प्रिंट की रिक्वेस्ट गई तो तमाम ब्रॉडकास्ट हुई, जहाँ प्रिंटर लगा हुआ है वहाँ से प्रिंट हो गया, बाकी सारों ने रिजेक्ट कर दी। तो ये विदाउट सर्विस का एक कंसेप्ट था। एडवांटेज ऑफ पेयर टू पेयर नेटवर्क, इसके क्या एडवांटेज थे कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कैन शेयर फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रिंटर। इसका एक सिंपल फ़ायदा ये था कि एक आप फाइल्स या फोल्डर्स या वर्क एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल या अपने जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा था एक वर्ड फाइल में, एक्सेल में, पीडीएफ में, वो आप एक प्रिंटर एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन या ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते थे और प्रिंटर को भी शेयर कर सकते थे। पेयर टू पेयर नेटवर्किंग इज इजी टू सेटअप, बिल्कुल इजीली कॉन्फ़िगर हो जाती थी और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व नहीं होती थी। सपोर्ट यूजिंग वर्क ग्रुप, एक ये
वर्क ग्रुप बन जाता था, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स तो इन्वॉल्व ही नहीं था इसमें। इस Microsoft work group is a number of users who share drives and printer resources in an independent peer-to-peer relationship. तो पेयर टू पेयर नेटवर्किंग का ये कंसेप्ट था। डिसएडवांटेज ऑफ पेयर टू पेयर के क्या थे, डिसएडवांटेज क्या रहे हैं, ये बेसिकली आपको बेसिक कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम एडवांस नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे। ऑफिस ओनली मॉडरेट नेटवर्क सिक्योरिटी, इसका ये एक डिसएडवांटेज था कि हम इसको सिक्योर नेटवर्किंग नहीं कहते। नो सेंट्रलाइज स्टोरेज और अकाउंटिंग मैनेजमेंट, कोई यानी मेन सर्वर नहीं था, कोई प्रिंट सर्वर नहीं है, कोई फाइल सर्वर नहीं है, तो सेंट्रलाइज स्टोरेज नहीं था। नॉट अफेक्टिव फॉर कम्प्लेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट, कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट थी नहीं तो इफेक्टिव कैसे हुआ। नॉट ऑप्टिमाइज फॉर simultaneous access by over 10 computers, तो ऑप्टिमाइज नहीं था। जब अगर 10, 15, 20 कंप्यूटर्स हो जाएं तो फिर ये मोस्टली कह सकते हैं कि आपका नेटवर्क चोक रहता है, क्योंकि अगर 20 पीसी एक वक्त में रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो वो 20 मल्टीप्लाई होके हर वर्क स्टेशन के पास जाएगी, और फिर साइमल्टेनियसली उसका रिप्लाई आएगा, और ये फिर मोस्टली इस तरह का नेटवर्क जो सिंपल नेटवर्क होता है वो चोक हो जाता था। तो ये नॉट ऑप्टिमाइज फॉर द मल्टी साइमल्टेनियस एक्सेस के लिए सूटेबल नहीं था। सर्वर बेस्ड नेटवर्क मॉडल, विंडोज़ 2000 सर्वर के अंदर एक बेस्ट फीचर था, ए मॉडल इन विच एक्सेस टू द नेटवर्क, टू रिसोर्सेज एंड द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज अकम्प्लिश्ड थ्रू वन और मोर सर्वर्स। आप एक सर्वर या किसी ज़्यादा सर्वर्स को मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके सोर्सेज की, उसके नेटवर्क की, उसके यूजर्स की, उसके फाइल सिस्टम्स की, उसके प्रिंट सर्वर्स की, फाइल सर्वर्स की, everything you can manage through the server based network, used particularly in medium and large organization, और सर्वर बेस्ड नेटवर्क मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता था। A server based network, Windows 2000 सर्वर, ये मेन सर्वर है, ये वर्क स्टेशन है, और ये तमाम तरह के वर्क स्टेशंस को जो है वो हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है, इसको मैनेज कर सकता है। जैसे इसमें विंडो एनटी का वर्क स्टेशन हो, यूनिक्स का हो, विंडो 98 का हो, विंडो 2000 प्रोफेशनल का हो, मैकिन्टॉश का हो, विंडोज़ 95 हो, और विंडोज़ 3.11, ये तमाम ओल्ड वर्जन थे विंडोज़ 2000 से पहले या इसी जनरेशन के दौरान। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स अवेलेबल थे, और ये विंडोज़ 2000 सर्वर्स को सपोर्टेड भी थे, और विंडोज़ 2000 सर्वर्स के फीचर्स में से था कि ये तमाम इस तरह के वर्क स्टेशंस को वो मैनेज कर सकता था। Advantage of server-based models: provide extensive multi-user access to resources, ideal for coordinated servers and network management, provide robust security
to network resources, contribute to fast network performance. ये तमाम एडवांटेज थे। कौन कौन से कि एक्सटेंसिव मल्टी यूज़र एक्सेस, कोऑर्डिनेट सर्वर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट, robust security, contribution to the fast network performance. Disadvantage of the server based model. Disadvantage, आप ये कह सकते हैं कि जो पेयर टू पेयर नेटवर्क्स के है एडवांटेज हैं वो इसके डिसएडवांटेज हैं। जनरली रिक्वायर्ड मोर एडवांस प्लानिंग देन पेयर टू पेयर, क्योंकि पेयर टू पेयर कंप्यूटर्स के अंदर, पेयर टू पेयर कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है कि एक बिल्कुल बेसिक लेवल का एक्सपर्ट जो होता है, टेक्नीशियन जो होता है, वो इस तरह के जो है ना वो इसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। कैन बी मोर कम्प्लेक्स टू सेट अप देन पेयर टू पेयर नेटवर्क, तो ये एक डिसएडवांटेज है। यूजिंग विंडोज 2000 सर्वर इन अ सर्वर बेस्ड मॉडल, यूजिंग विंडोज 2000 server in a server based model. Enable extensive file, folder and printing sharing. Next, access to resources can be centralized, decentralized or a combination of both. Provide robust management of software applications. Provides a storage platform for email, web servers and e-cameras. Next, using Windows 2000 server and a server based model continued के next इसमें ऑप्शन है enable coordinated backup of networks, data resources. Sharing of computer resources can be arranged to reflect the server pattern of groups within an organization. Server administration can save time and money when installing software and software upgrade. कि आप जब सर्वर बेस्ड आपके पास नेटवर्क है तो आप सर्वर से ही तमाम वर्क स्टेशन पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ये मैनेजेबल है। टोटल कास्ट ऑफ ओनरशिप, टोटल कास्ट ऑफ ओनरशिप, द कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कंप्यूटर्स एंड इक्विपमेंट ऑन ए नेटवर्क which includes hardware, software, maintenance and support cost. ये तमाम की तमाम इसमें कास्ट इन्वॉल्व होती है। जब आप हार्डवेयर लेते हैं तो ये सारी कास्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल डिज़ाइन फॉर वर्क स्टेशन यूज़, हमने शुरू में भी आपको बताया है इस स्लाइड में। Use with Windows 2000 server to reduce the TCO. Support up to 2 processor. Handle up to 4 GB of RAM. ये Windows 2000 के मिनिमम फीचर्स थे। Windows 2000 server, a full feature server operating system. Support up to 4 processor, handle up to 4 GB of RAM, offering a wide range of services and user connectivity options. Example, Windows 2000 server services handle virtually unlimited user connections. इस Windows 2000 सर्वर्स में
کوئی لیمٹ نہیں تھی کہ آپ 100 یوزرس کو مینیج کر سکتے ہیں، 200 کو کر سکتے ہیں، 50 کو کر سکتے ہیں. ان لمیٹیڈ ریسورسز کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، ڈپینڈنگ آن ہارڈ ویئر مین کہ آپ کے ہارڈ ویئر کی کیپیسٹی کیا ہے، آپ کا ہارڈ ویئر کس لیول کا لگا ہوگا. اس ہارڈ ویئر کے لیولز میں جو ہے وہ ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہارڈ ویئر کی کیپیسٹی اس لیول کی ہے کہ آپ تھاؤزنڈس اور انلمیٹیڈ یوزرس کو مینیج کر سکتے ہیں. ایکٹیو ڈائریکٹری مینجمنٹ. ایکٹیو ڈائریکٹری ایک سروسز ہے جس سے آپ جو ہے وہ سروس کے اندر یوزر مینجمنٹ اور دوسری مینجمنٹ کر سکتے ہیں. تو ایکٹیو ڈائریکٹری مینجمنٹ کا ایک بیسٹ فیچر ہے. نیٹورک مینجمنٹ کا فیچر ہے. ویب بیسڈ مینجمنٹ سروسز کا فیچر ہے. نیٹ ورک وائڈ سیکیورٹی مینجمنٹ کا فیچر اویلیبل ہے. یہ سب ایگزامپلس ہیں ان کے سروسز کی. نیکسٹ اس میں نیٹ ورک اسٹوریج مینجمنٹ، ریموٹ نیٹ ورک ایکسیس، ٹرمینل سروسز، ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سروسز، ہائی اسپیڈ نیٹ ورک کنیکٹیوٹی، اپلیکیشن سروسز مینجمنٹ، نیٹ ورک پرنٹر مینجمنٹ. یہ ساری کی ساری اس کی سروسز ونڈوز 2000 سرورز کی ہیں. ونڈوز 2000 سرور ورژنز ٹارگیٹ ایپلیکیشن. Windows 2000 Server provide full server services as a file, print, web, email, and e-commerce server. Windows 2000 Advanced Server intended for high-end enterprise network that use server clustering. Windows 2000 Data Center intended to large database جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ونڈوز 2000 سرور ورژن کمپیئر ہم اس کو کر لیتے ہیں کہ اس کے ونڈوز 2000 سرور جو ہے وہ اپ ٹو 4 پروسیسر 4 GB ریم سپورٹڈ ہے. ونڈوز 2000 ایڈوانس سرور اپ ٹو 8 پروسیسر 8 GB ریم سپورٹڈ اینڈ سپورٹڈ سرور کلسٹرنگ کے لیے بھی یوز ہوتا رہا ہے اور ہو سکتا ہے اب بھی یوز ہوتا ہے. بہت سی آرگنائزیشن میں ابھی بھی لگا ہوا ہے. ونڈوز 2000 ڈیٹا سے اپ ٹو 32 پروسیسر 64 GB آف ریم اینڈ سپورٹڈ سرور کلسٹرنگ آلسو. کہ جب آپ سرور بیسڈ کوئی انسٹالیشن کرنے جائیں تو آپ نے آپریٹنگ سسٹم کے جو مختلف ورژنس ہیں ونڈوز 2000 میں اس میں یہ خیال رکھنا کہ اگر آپ کے پاس 4 پروسیسر کا ہارڈ ویئر ہے اور اس میں 4 GB ریم ہے تو آپ یہ انسٹالیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ ونڈوز 2000 ایڈوانس سرور انسٹال کریں گے تو اس میں جو ہے وہ کچھ ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوں گی تو اس کے لیے 8 GB ریم اور 8 پروسیسرس ہونے چاہیے. اگر 6 بھی ہو جائے گا تو چل جائے گا لیکن سپورٹڈ اپ ٹو 8 پروسیسر تک ہے اور اسٹینڈرڈ ہی ہمیں یوز کرنے چاہیے. ونڈوز 2000 ڈیٹا سینٹر میں اپ ٹو 32 پروسیسر اور 64 GB ریم جو ہے وہ سپورٹڈ ہے. سرور کلسٹرنگ the ability to share the computing load and resources by linking two or more discrete computer systems to function as though they are one. تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دو سرورز جیسے سیم اسپیکس کے ہوں یا لٹل بٹ ڈفرینس کے ہوں تو ان کے سورسز کو شیئر کر لیا جاتا ہے. ان کے سورسز
جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا ڈیٹا بیس سروس جو ہے وہ اپنی سروسز چھوڑتا ہے تو جو اس کا فیل اوور سرور ہے، کلسٹرنگ کی یہ ایک بیسٹ فیچر ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز جو اس پرائمری سرور پہ چل رہی ہوتی ہے کلسٹرنگ کے تھرو، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ سروسز شفٹ ہو جاتی ہیں دوسرے سروس پہ۔ تو یہ کہہ لیں کہ کلائنٹ اینڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ پرائمری سرور چل رہا ہے جس کنٹری، کیونکہ یہ کلسٹرنگ کا ایک بیسٹ فیچر ہے۔ کلسٹرنگ سرور ایکٹیو ایز ون، ونڈوز 2000 سرور یہ ہمارا ایک سرور ہے، ونڈوز 2000 سرور یہ دوسرا سرور ہے، ونڈوز 2000 یہ تیسرا سرور ہے۔ یہ تینوں سرورز کے اندر کلسٹرنگ ہوئی ہے۔ ان کیس آف یہ سروس بیٹھ جاتا ہے تو یہ ٹیک اوور کر سکتا ہے، یہ ٹیک اوور کر سکتا ہے، یہ سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے، یہاں سے ایکٹیو ڈائریکٹری چل سکتی ہے، یہاں سے چل سکتی ہے، پرنٹ سرور یہاں سے آ سکتا ہے۔ یہ کمیونیکیشن ہب ہے ہمارا مینجمنٹ کے لیے ایک مینیجیبل سوئچ ہے، تو یہاں سے جو ہے وہ ریکویسٹ جو ہے وہ ورک اسٹیشنز کی طرف موو کرتی ہے۔ تو کلسٹرنگ کا یہ فیچر ہے۔ ونڈوز 2000 سرور فنڈامنٹلز، کیپیبلٹیز، شیئرنگ ریسورسز، مینیجنگ ریسورسز، تمام ریسورسز، فائل سرور، پرنٹ سرور، ایکٹیو ڈائریکٹری، یوزرز، سیکیورٹی، اس تمام جو ہے وہ سورسز کی شیئر ریسورسنگ، مینیجنگ سورسنگ، اسکیلبلٹی اینڈ کیپیبلٹی، ریلائبلٹی، ڈسٹریبیوٹیبلٹی، فالٹ ٹالرنس کہ فالٹ ٹالرنس بھی اس میں ایک فنڈامنٹل کیپیبلٹی ہے۔ انٹرنیٹ انٹیگریشن اینڈ ای کامرس یہ بھی اس میں ایک اس کا بیسک فنکشنلٹی ہے۔ شیئرنگ ریسورسز، ڈیٹا فائل اینڈ فولڈر، سینٹرلائز ایکسیس اینڈ فاسٹ سرچز، particularly when the Active Directory is implemented۔ تو یہ ایک شیئرنگ سورسز کا جب ایکٹیو ڈائریکٹری سورسز امپلیمنٹ ہو تو یہ ڈیٹا فائل اور فولڈرس جو ہیں وہ شیئرنگ سورسز کے لیے ہم بیسٹ ایکسیس کر سکتے ہیں، بیسٹ کنفیگریشن اس کی کہہ سکتے ہیں۔ پرنٹرس، ایزی کنفیگرڈ اینڈ پبلش پرنٹر سورسز، شیئر سورسز میں پرنٹرس کو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں اور پبلکلی شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ تمام سورسز یہ پرنٹ کو پرنٹ سرور یا پرنٹرس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر، نیٹورک انسٹالیشن آر آپشن ٹو رن سافٹ ویئر آن دا سرور، تمام اپلیکیشنز جو ہے وہ رن ہو سکتی ہیں سرورز کے تھرو اور نیٹورک کے تھرو۔ میپ ڈرائیوڈ آر فولڈر، اس میں ایک فیچر یہ بھی ہے کہ آپ ایک ڈسک کو میپ کر دیں یا اس کو شیئر کر دیں باقی سورسز کے لیے۔ A disk volume or folder that is shared on the network by a server or a workstation۔ آپ یہ فولڈر، فائل یا ڈائریکٹری یا ڈرائیو جو ہے وہ ورک اسٹیشن پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں دوسرے سورسز کے لیے، یا سرور پہ تمام ورک اسٹیشن کے لیے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ It gives destination network designated network workstation access to the file and data in its shared volume or folder۔ The workstation via software determines a drive letter for the share volume which is the workstation map to the data۔ تو اس طرح آپ جو ہے
اس کے ایک فیچر میں ہے نیٹ ورک کے فیچر میں کہ آپ ڈرائیو ڈائریکٹری فولڈر کو شیئر کروا سکتے ہیں شیئرنگ سورسز کے طور پہ. یہاں اس ڈرائیو کے اندر شیئرڈ ڈرائیو ایک سرور ہم نے یہ کنفیگر کیا. یہ اس کے اندر ہم نے مختلف ڈرائیوز لگا دیں. یہ ڈرائیو لوکلی ہی لگی ہوئی ہیں. اگر آپ ایکسٹرنل ڈرائیوز ٹیگ ایرے یا اسٹوریج ایوا لگا سکتے ہیں تو یو کین کنفیگر، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو ونڈوز 2000 سرورز کے فیچرز کے اندر یہ آپشن ہے کہ آپ ڈرائیو کو شیئر کروا سکتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ تمام ان ورک اسٹیشنز کے لیے. ورک اسٹیشن ایکسیسنگ شیئر ڈرائیوز آن دا سرور. جیسے یہ ورک اسٹیشن ہے، یہ یہاں سے جو ہے وہ فورسز شیئر کرنے کے لیے اپنے کنیکٹر ہب کے پاس گیا. اس کی ریکویسٹ جو بھی مینیجیبل سوئچ ہے اس نے راؤٹ کر دی ونڈوز 2000 سرور کی طرف. تو ونڈوز 2000 سرورز کے یہ جو ڈرائیوز ہم نے شیئر کی تھی یہ شیئر ڈرائیو ہیں. تو وہ یہ جو ورک اسٹیشن ہے یہ یوزرز ہے، یہ اس ڈرائیو کو شیئر کر رہا ہے، اس کے سورسز کو شیئر کر رہا ہے. تو یہ اسی طرح تمام جو ورک اسٹیشن ہے وہ اس ڈرائیو کو شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ پاسیبلٹی ہے کہ آپ یہاں کی ڈرائیوز کو بھی ان کے لیے شیئر کروا سکتے ہیں سورسز کے لیے. تو یہ شیئرنگ سورسز کا ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ڈرائیو ڈائریکٹریز یا فولڈرز یا فائلز کو شیئر کر سکتے ہیں. مینیجنگ ریسورسز. ونڈوز 2000 provide a coordinated way to manage network. The Active Directory is one example of sources management. تو جب ہم Active Directory سروسز انسٹال کرتے ہیں، اس کو کنفیگر کرتے ہیں، تو تمام جو سورسز ہم نیٹ ورک پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس سے کنٹرول کر لیتے ہیں، اور یہ بیسٹ ایک مینجمنٹ ٹول ہے. ریسورسز ہیز ٹو میننگ ڈپینڈنگ آن دا کنٹینٹس. یہ دو میننگ ہے. ایک میننگ کیا ہے؟ آن این ونڈوز 2000 سرور نیٹورک آف فائل سسٹم shared printers or shared directories that can be accessed by the user. ایک تو یہ کنسیپٹ ہے. دوسرا ہے آن اے ورک اسٹیشن. یہ ونڈوز سرور کی بات ہے، اور دوسرے آپشن میں ونڈوز ورک اسٹیشن کی بات ہے. جو ہم نے پیچھے جو سلائڈ تھی اس میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا تھا کہ آن اے ورک اسٹیشن اور سرور آر سورسز ان این IOS address or memories that is allocated to the computer's components such as disk drive or communication part. تو یہ سورسز اس طرح جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. دو کنسیپٹ ہیں. اسکیلبلٹی اینڈ کمپیٹیبلٹی. اسکیلیبل. کیا اسکیلیبل؟ اے کمپیوٹرز آپریٹنگ سسٹم دیٹ کین بی یوزڈ آن small to large computers such as those with a single Intel based processor, and larger computers such as those with multiple processors. تو یہ اس کی اسکیلبلٹی اینڈ کمپیٹیبلٹی ہے. سیمانٹک ملٹی پروسیسنگ. SMP a type of computers with two or more CPUs that share the processing load. کہ جب ایسا کمپیوٹر جو دو یا دو سے زیادہ CPU کے ساتھ اپنی پروسیسنگ لوڈ، اس کو لوڈ بیلنسنگ بھی دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ پروسیسنگ لوڈ شیئر کر رہا ہو، تو لوڈ بیلنسنگ
होती हैं। विंडोज़ 2000 सर्वर होस्ट सिस्टम कंपैटिबिलिटी। कि विंडोज़ 2000 सर्वर जो है वो तमाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे चल रहे हैं उसके साथ कंपैटिबल है। कौन कौन से सिस्टम? IBM मेन फ्रेम के साथ, नोवल नेटवेयर के साथ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, बेनयान के साथ, DAC। तमाम ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फ्लेवर्स चल रहे हैं उन सब के साथ ये कंपैटिबल है। और इंक्लूडिंग विंडोज़ के जो वर्जन्स हैं, विंडोज़ 98 है, विंडोज़ NT है, विंडोज़ 3.11 है, विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल है, उन सारों के साथ भी ये कंपैटिबल तो है ही है। और अदर दैन विंडोज़ के बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी कंपैटिबिलिटी है। विंडोज़ 2000 सर्वर क्लाइंट सिस्टम कंपैटिबिलिटी। तो typically operating system that access Windows 2000 server as client are इसमें MS-DOS, अगर आपका कोई वर्क स्टेशन माइक्रोसॉफ्ट MS-DOS इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 3.x है, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, विंडो 2000 प्रोफेशनल, मैकिन्टॉश, यूनिक्स, ये तमाम के तमाम जो क्लाइंट्स हैं इनके साथ सर्वर के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है और इसमें नेटवर्किंग में कोई इशू नहीं आता। फॉल्ट टॉलरेंस की जो बात हमने पहले की थी कि टेक्निक्स दैट एम्प्लॉय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड इंश्योर अगेंस्ट इक्विपमेंट फेलियर, कंप्यूटर सर्विसेज इंटरप्शंस एंड डेटा लॉस। तो ये इसमें एक ऑप्शन और फीचर्स अवेलेबल है। एग्जाम्पल विंडोज़ 2000 फॉल्ट टॉलरेंस फीचर्स की रिकवरी फ्रॉम हार्ड डिस्क फेलियर, इसकी रिकवरी अवेलेबल है, रिकवरी हो जाती है। रिकवरी फ्रॉम लॉस्ट डेटा इन फाइल, वहाँ रिकवरी अवेलेबल है। रिकवरी फ्रॉम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एरर, यहाँ रिकवरी अवेलेबल है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पावर आउटेज, यहाँ रिकवरी है। एडवांस वार्निंग अबाउट सिस्टम एंड हार्डवेयर प्रॉब्लम, तो ये सारे के सारे इसके विंडोज़ 2000 फॉल्ट टॉलरेंस के एग्जांपल्स हैं। न्यू विंडोज़ 2000 सर्वर फीचर्स क्या हैं? एक्टिव डायरेक्टरी। विंडोज़ 2000 में ये एक ऐसी सर्विसेज थी जो बहुत ही कंट्रोलेबल और पहले मैनेजेबल थी, और ऐसी सर्विसेज जिसमें 2000 से लेके 2020 तक इन्हेंसमेंट आती रही हैं। और ये फीचर्स जो है वो एक बेसिक और एडवांस दोनों फीचर्स में से एक है। आप विंडो 2000 डेटाबेस ऑफ कंप्यूटर्स, यूजर्स, शेयर प्रिंटर्स, शेयर फोल्डर्स एंड अदर नेटवर्क रिसोर्सेज and resources grouping that is used to manage a network and enable users to quickly find a particular resources. International language compatibility, support more languages and even multiple versions of the same language, which as English used in Britain and English used in United States. FAT 16 फाइल सिस्टम है, इसके एडवांटेज क्या हैं? इसमें FAT 32, FAT 16, NTFS ये फाइल सिस्टम है, इसके बारे में आपको
بتاتے ہیں کہ فیٹ 16 کا ایڈوانٹیج ہے سپورٹڈ بائی دا مینی اسمال کمپیوٹر سسٹم لو آپریٹنگ اوور ہیڈ partitions up to 4 GB with window NT and 2000 files size up to 2 GB. Disadvantage can become corrupted over time, limited file and folder security and no editing, do not support long file names. فائل سسٹم کے یہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں. فائل سسٹم فیٹ 32 کے ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں. مور روبوسٹ دین فیٹ 16 enable smaller allocation unit than 16 in Windows 2000. Supports volumes up to 32 GB in Windows 2000. Support long file name, یہ اس کے ایڈوانٹیج ہیں. ڈس ایڈوانٹیج فیٹ 32 فائل سسٹم کا لمیٹڈ فائلس اینڈ فولڈر سیکورٹی اینڈ نو ایڈیٹنگ. یہ ایک جو ہے وہ مین اس کا فیٹ 32 فائل سسٹم کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. NTFS file system is used in Windows NT 4 and has the following features. Support for long file names. File can be compressed. Large file capacity. File activity tracking. تو NTFS کے فائل سسٹم کے یہ فیچرز ہیں. NTFS 5 is used in the Windows 2000 and has the following new features. Ability to encrypt files, no system reboot after creating extended or spanned volume, ability to resource drive designations, mount drive mean آپ ماؤنٹ کروا رہے ہیں. Indexing for fast access, ability to retain shortcut and other file system, file information when file are transferring between volumes, ability to set disk quotas. تو یہ NTFS فائل سسٹم 5 کے پیچھے تھے جو ونڈوز 2000 میں انٹروڈیوس ہے. یہ فائل سسٹم یوز ہوتا ہے ونڈوز 2000 سرورز میں. ونڈوز NT میں NTFS 4 ہوتا تھا. اس سے پہلے فائل جو 98 ونڈوز میں تھا فیٹ 16 فیٹ 32. Choosing a file system. As a general rule, plan to use NTFS unless you need to use FAT16 and FAT32 for backward compatibility on a system such as for a dual boot system. یہ آپ کا پلان ہے کہ آپ کہاں کون سا سسٹم کون سا فائل سسٹم کس آپریٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. اس چیپٹر کی سمری کیا ہے کہ ہم نے ونڈوز 2000 کے بیسک فیچر کے بارے میں, اس کے پروڈکٹ کے بارے میں, اس کے ورژنس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا اوور ویو دیا ہے. فائل سسٹم کے بارے میں اوور ویو دیا ہے اور اس میں جو بیسک نیٹ ورک کنسیپٹ تھا اس کا اوور ویو دیا ہے. نیٹ ورک سرورز آر یوزڈ ان فیملیئر اینڈ ایکسپیکٹڈ پلیسز.
One example of a familiar phrase is as a web server. The use of server-based networks is outpacing peer-to-peer networks. So Windows 2000 server offers traditionally and new servers compatibility, file and printing share, web and network communication, network management capacity, Active Directory, zero administration for Windows. तो ये हमारा आज का मेन जो विंडोज़ 2000 सर्वर्स के बारे में ये फर्स्ट लेक्चर और ओवरव्यू था। हम इसकी तमाम डिटेल्स जो हैं लेक्चर्स आगे डिस्कस करते जाएंगे और इसके साथ विंडोज़ 2003, विंडोज़ 2008, विंडोज़ 2012 और विंडोज़ 2016, 19 ये सारों के सर्वर की डिटेल्स और उसके लेक्चर भी हम अपलोड करेंगे। तो थैंक यू। एट द एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल गेट जुगाड़, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड डेटाबेस के बारे में नॉलेज मिल सके, आपको हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो थैंक यू सो मच।